Thesis number 28, Maturity. 2. परिपक्वता. Phase 1. Translate into Hindi. Maturity is not of time and age. परिपक्वता समय और उम्र की नहीं होती. There is no interval between now and maturity. There is never in the meantime. अब अर्थात नाव और परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी के बीच कोई अंतराल नहीं है. इस बीच अर्थात इन द मीन टाइम कभी नहीं होता. Maturity is that state when all choice has ceased. It's only the immature that choose and know the conflict of choice. परिपक्वता वो अवस्था है जब सभी चयन समाप्त हो जाते हैं. यह केवल अपरिपक्व है जो चुनाव के संघर्ष को चुनता है और जानता है. In maturity, there is no direction, but there is a direction which is not a direction of choice. परिपक्वता में कोई दिशा ही नहीं होता है, लेकिन एक दिशा होती है जो पसंद की दिशा नहीं होती. Conflict at any level, at any depth indicates immaturity. किसी भी स्तर पर, किसी भी गहराई पर संघर्ष अपरिपक्वता को दर्शाता है. There is no such thing as becoming mature except organically, the mechanical inevitability of certain things to ripen. परिपक्व होने जैसे कोई चीज़ नहीं है सिवाय जैविक रूप से कुछ चीज़ों में के पकने की यांत्रिक अनिवार्यता. The understanding which is the transcending of conflict in all its complex varieties is maturity. यह समझ जो अपने सभी जटिल रूपों में संघर्ष का अतिक्रमण अर्थात ट्रांसेंडिंग है परिपक्वता है. However complexities and however subtle the depth of conflict within and without can be understood. यह कितना भी जटिल और कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, भीतर और बाहर की सभी की गहराई को समझा जा सकता है. Conflict, frustration, fulfillment is one single movement within and without. संघर्ष, हताशा, तृप्ति एक ही गति है भीतर और बाहर. The tide that goes out must come in, and for that movement itself, called the tide, there is no out and in. जो ज्वार बाहर आता जाता है उसे अंदर आना पड़ता है और उस गति के लिए जिसे ज्वार कहा जाता है कोई बाहर और अंदर नहीं है. Conflict in all its forms must be understood, not intellectually but actually coming emotionally into contact with conflict. संघर्ष को उसके सभी रूपों में समझना चाहिए, बौद्धिक रूप से नहीं बल्कि वास्तव में अर्थात एक्चुअली वास्तव में संघर्ष के साथ भावनात्मक रूप से संपर्क में आके. The emotional contact, the shock, is not possible if it is intellectually, verbally accepted as necessary or denied sentimentally. भावनात्मक संपर्क सदमा संभव नहीं है यदि यह बौद्धिक रूप से, मौखिक रूप से, आवश्यक रूप से स्वीकार किया गया हो या भावनात्मक रूप से इनकार किया गया हो. Acceptance or denial does not alter a fact,
nor will reason bring about a necessary impact. स्वीकृति या इनकार एक तथ्य को नहीं बदलता है और न ही तर्क एक आवश्यक प्रभाव ले आएगा. What does is seeing the fact. क्या लाएगा? वो तथ्य को देखना अर्थात seeing. There is no seeing if there is condemnation or justification or identification with the fact. यदि निंदा या औचित्य या तथ्य के साथ पहचान है तो वो कोई देखना नहीं है, seeing नहीं है. Seeing is only possible when the brain is not actively participating but observing, abstaining from classification, judgment and evaluation. देखना अर्थात सीइंग तभी संभव है जब मस्तिष्क सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहा है लेकिन अवलोकन, वर्गीकरण, निर्णय और मूल्यांकन से परहेज कर रहा है. There must be conflict when there is the urge to fulfill with its inevitable frustrations. There is conflict when there is ambition with its subtle and ruthless competition. Envy is part of this ceaseless conflict to become, to achieve, to succeed. अपनी अपरिहार्य कुंठाओं को पूरा करने की ललक होने पर संघर्ष होना चाहिए. महत्वाकांक्षा होने पर संघर्ष होता है. इसकी सूक्ष्म और निर्मम प्रतिस्पर्धा के साथ ईर्ष्या इस निरंतर संघर्ष का हिस्सा है. बनना, हासिल करना, सफल होना. There is no understanding in time. समय में कोई समझ नहीं है. Understanding does not come tomorrow. It will never come tomorrow. It is now or never. There is only now and there is no never. समझ कल नहीं आती. यह कल अर्थात टुमारो कभी नहीं आएगा. यह अभी या कभी नहीं है. केवल अभी है और कभी नहीं है. The seeing is immediate. When from the brain the significance of seeing, understanding eventually is wiped away, then seeing is immediate. देखना अर्थात seeing तत्काल है. जब मस्तिष्क से देखने, समझने का महत्व अंततः मिटा दिया जाता है तो देखना तत्काल होता है. Seeing is explosive, not reasoned, calculated. देखना अर्थात seeing विस्फोटक है, तर्कपूर्ण नहीं है, न गणना की गई है. It is fear that often prevents seeing, understanding. यह डर ही है जो अक्सर देखने समझने से रोकता है. Fear with its defenses and its courage is the origin of conflict. भय अपने बचाव और अपने साहस के साथ संघर्ष का उद्गम है. The seeing is not only with the brain but also beyond it. देखना न केवल मस्तिष्क के साथ है बल्कि इसके परे भी है. Seeing the fact brings its own action, entirely different from the action of idea thought. तथ्य को देखने से उसकी अपनी क्रिया होती है जो विचार की क्रिया से पूरी तरह भिन्न होती है. एक्शन फ्रॉम आइडिया थॉट ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट. विचार सोच से होने वाला क्रिया संघर्ष को जन्म देती है. एक्शन देन इज एन अप्रोक्सीमेशन, कंपैरिजन with the formula, with the idea, and this brings conflict. क्रिया तब एक अनुमान है, सूत्र के साथ तुलना और विचार के साथ यह संघर्ष लाता है. There is no end to conflict, small or great. In the field of thought, the essence of conflict is non-conflict, which is maturity. विचार के क्षेत्र में छोटे या बड़े संघर्ष का कोई अंत नहीं है.
संघर्ष का सार असंघर्ष है, नॉन कॉन्फ्लिक्ट है, जो परिपक्वता है। Phase 3 Comprehension. Question number 1. What is the main point that the author is making about maturity? लेखक परिपक्वता के बारे में मुख्य बात क्या कह रहा है? The author is making the point that maturity is not a state that we reach, but a state that we are in. It is the state of being free from conflict. लेखक इस बात पर जोर दे रहा है कि परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी वो अवस्था नहीं है जिस तक तुम पहुंचते हो, बल्कि वो अवस्था है जिसमें हम हैं। यह संघर्ष अर्थात कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त होने की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट? परिपक्वता और संघर्ष के बीच क्या संबंध है? The author argues that maturity is the transcendence of conflict. When we are mature, we do not see conflict as something to be avoided or overcome. We see it as a natural part of life and we are able to accept it without judgment. लेखक का तर्क है कि परिपक्वता संघर्ष का अतिक्रमण है। जब हम परिपक्व होते हैं तो हम संघर्ष को टालने या दूर करने लायक चीज़ के रूप में नहीं देखते हैं। हम इसे जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखते हैं और हम इसे बिना निर्णय के स्वीकार करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरिटी एंड एक्शन? परिपक्वता और क्रिया कर्म के बीच क्या संबंध है? द ऑथर आर्ग्यूज दैट मैच्योरिटी लीड्स टू एक्शन. When we are mature, we are able to act in a way that is free from conflict. We are not driven by our desires or fears. We are able to act in accordance with our highest values. लेखक का तर्क है कि परिपक्वता कार्यवाही की ओर ले जाती है, एक्शन की ओर ले जाती है। जब हम परिपक्व होते हैं तो हम ऐसे तरीके से काम करने में सक्षम होते हैं जो संघर्ष से कॉन्फ्लिक्ट से मुक्त होता है। हम अपनी इच्छाओं या भय से प्रेरित नहीं होते। हम अपने उच्चतम मूल्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मैच्योरिटी एंड थॉट? परिपक्वता और विचार के बीच क्या संबंध है? The author argues that maturity is not a state of mind. It is not something that we can achieve through thinking or reasoning. Maturity is a state of being that is beyond thought. लेखक का तर्क है कि परिपक्वता मन की एक अवस्था नहीं है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम सोच विचार या तर्क से हासिल कर सकते हैं। परिपक्वता एक ऐसी अवस्था है जो सोच से परे है। What is the author's suggestion for how we can become more mature? हम कैसे अधिक परिपक्व अर्थात मैच्योर बन सकते हैं, इसके लिए लेखक का क्या सुझाव है? The author suggests that we can become more mature by becoming more aware of our conflicts. When we are aware of our conflicts, we can begin to see them as a natural part of life. We can learn to accept them without judgment, and we can begin to act in a way that is free from conflict. अब लेखक का सुझाव है कि हम अपने संघर्षों अर्थात कॉन्फ्लिक्ट के प्रति अधिक जागरूक होकर अधिक परिपक्व बन सकते हैं। जब हम अपने संघर्षों से अवगत होते हैं तो हम उन्हें जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। हम बिना किसी निर्णय के उन्हें स्वीकार करना सीख सकते हैं और हम इस तरह से कार्य करना शुरू कर सकते हैं जो संघर्ष से मुक्त हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी पॉइंट्स to mention, please put them down in the comment section. Thank you again.